हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 12 जून 2023। नाउ सम ऑफ द न्यूज़ व्हिच इज important which we will be discussing today. One is economy itself, about the editorial। ठीक है, इसके बारे में हमने न्यूज़ लास्ट वीक में पढ़ा था, तो उसका एक एडिटोरियल हम देखेंगे। देन द अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज फ्रेंच ओपन फ्रॉम स्पोर्ट्स। That is important because Grand Slams, they are quite important from the exam point of view. Questions are normally asked from here. Then we will have an editorial on Manipur violence again. Now ये जो editorial है ये थोड़ा सा different है। इसमें जो है जो सोशियोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स होती हैं किसी भी वायलेंस का, तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट की डिस्कस कर रहे हैं। तो जो सोशियोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स होती हैं, जो कल्चरल अंडरपिनिंग्स होते हैं विच फॉर्म्स द रूट ऑफ द वायलेंस, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज इसको डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रोल ऑफ गवर्नर इन द स्टेट। So before moving to the editorial page and other important news from defense and other sectors, so let's take the news from the front page. तो पहला जो news है that is again from the Manipur only, and the cyclone Biparjoy. So the first news is that cookies to boycott peace panel over CM's presence. तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि जो वायलेंस ब्रेकआउट हुआ था 3 मई को, तो दैट वाज बिटवीन कुकीज एंड मैतीस। फाइन। तो अब यूनियन गवर्नमेंट हैड कॉन्स्टिट्यूटेड अ पीस कमिटी। ठीक है, एक तो प्रोब के लिए कमेटी बनी है और एक सिक्योरिटी के लिए कमेटी बनी है, पर ये जो है वो पीस कमेटी है। फाइन। सो पीस कमिटी इन मणिपुर। सो यह द कुकीज दे आर सेइंग दैट दे आर गोइंग टू बॉयकॉट दिस पीस पैनल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह एंड हिज सपोर्टर्स। So the major contention of the cookies are that their consent was not taken for including them on the panel, and they have demanded that the center make the situation conducive for talks first and then constitute a committee. Okay, so अगर आप यहाँ पे देखें this committee which was constituted by home ministry, so इसका aim क्या है? that is peace making process को facilitate करना among the various ethnic groups, and this 51 member committee will be chaired by the governor Anusuya Uike. Then the other important panelist अगर आप यहाँ पे देखेंगे, then the one is Kuki NP Manipur president, KIM president Ajang Khongsai, but he is also saying that he would not be able to sit with the Manipur government for peace talks. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपको एक पैटर्न समझना है कि दो कम्युनिटी के बीच में जो ट्रस्ट फैक्टर है वो अब इतना कम हो गया है कि जो एक गवर्नमेंट ने जो कमेटी बैठाई है, तो दे आर ऑल्सो they are not ready to participate. Then the panel also includes COCOMI, that is Coordinating Committee on Manipur Integration Integrity. It is a civil society group in Imphal and that has declared war against the cookies. That is the thing which is said by Ajay Khongsai कि इस पैनल में ऐसे लोग भी हैं. So that's the reason. The next is J. Lungdim, who is a retired Indian Defence Account Service officer, said that his name was included on the panel without his consent. Then Nemcha Kipken, a tribal minister in Manipur, is also a member of the panel. अब इस न्यूज़ को हम थोड़ा सा एडिटोरियल में ध्यान से पढ़ेंगे कि what are the sociological and cultural underpinnings of this violence. So before that, let's have a short news about the cyclone Biparjoy. So cyclone Biparjoy, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मली जो आप साइक्लोन पढ़ते हो वो बे ऑफ बंगाल में पढ़ते हो, पर ये जो साइक्लोन है it has originated in Arabian Sea. ठीक है, सो इट इज़ एन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। नाम इसका क्या है? बिपरजॉय। एंड इन इंडिया इट इज एक्सपेक्टेड टू मेक लैंडफॉल इन कच्छ कोस्ट ऑफ गुजरात। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें दैट लैंडफॉल करने के बाद बिटवीन मांडवी इन गुजरात एंड कराची इन पाकिस्तान, ओके, ऑन जून 15, द मैक्सिमम स्पीड इसका देखिए कितना होगा, 125 किलोमीटर पर आवर टू 135 किलोमीटर पर आवर एंड गोइंग अप टू 150 किलोमीटर पर आवर।
चलिए अब हम आते हैं मणिपुर, रूल रिमाइंडर ऑफ नॉर्थ ईस्ट टेंशन। नाउ सी, यहाँ पे जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो मणिपुर का है, ठीक, पर रेलेवेंट जो है ये अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट रीजन का है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मेन जो बात हो रही है दैट इज अबाउट द एथनिक डिवाइड, ठीक है, एथनिक डिवाइड ऑन ट्राइबल लाइंस, और ठीक है नॉर्मली ये देखा जाता है। तो जैसे कि अगर आप देखें कि एथनिक डिवाइड जैसे एक रिलीजन के बेस पे भी हो सकता है, रेस के बेस पे भी होता है, या ट्राइब्स आइडेंटिटी के बेस पे भी हो सकता है। ओके, सो हियर the author M.K. Narayanan, he is the former director of Intelligence Bureau and former National Security Advisor and former governor of West Bengal. Now see what important points an expert have to make, which is very important for understanding the underpinnings. देखिए पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे कि the first is there is an unbridgeable divide between Meiteis on the one hand and Kuki, Chin, Mizo, Zomi, Naga tribes on the other. तो ये कहते हैं कि द एथनिक डिवाइड एंड वायलेंस सीम्स टू सजेस्ट दैट लिटिल हैज चेंज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट नॉटविथस्टैंडिंग द मैनी डेवलपमेंट्स इन द प्लेस, थस द हीलिंग प्रोसेस इज लाइकली टू बी अ लॉन्ग ड्राउन आउट वन। तो कहते हैं कि हमें अभी तक लग रहा था कि जो पास्ट की चीज़ें हैं, जो एथनिक वायलेंस है नॉर्थ ईस्ट में, अब वो पास्ट की चीज़ें हैं एंड डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस, सो दिस एथनिक डिवाइड इज गेटिंग ब्लड। बट ये पूरा जो इंसिडेंट है मणिपुर का, ये कहता है कि नहीं, अभी भी वहाँ पे एथनिक लाइंस पे टेंशन बन सकती हैं, ओके, एंड नाउ द हीलिंग प्रोसेस इज अ वेरी लॉन्ग ड्राउन प्रोसेस। फाइन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्रोग्राम भी है नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए, आपने इसको पढ़ा भी होगा, PM डिवाइन प्रोग्राम, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। PM डिवाइन प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम्स भी नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए गवर्नमेंट रन करती है। अब देखिए now what he says that notwithstanding improved communication, better transit facilities and support for the special needs of the region, there does still exist a divide between the tribes and plain peoples within the region. ये मणिपुर की बात हो रही है। प्लेन रीजन कौन सा, जैसा कि आप जानते हैं इम्फाल, ठीक है ना, इम्फाल वैली की बात हो रही है, ठीक है। एक जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे, जैसा कि आप जानते हैं कि इम्फाल वैली का, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी था कि माइतीस वो अपने आप को एसटी में इंक्लूड कराना चाहते हैं। साथ साथ में एक जो प्रॉब्लम के बारे में बात हुई थी ये कि जो माइतीस है दे कैन नॉट बाय द लैंड इन हिल एरिया, बट द ट्राइबल पीपल इन हिल एरिया दे कैन बाय द लैंड इन इम्फाल वैली। ओके, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, बट जब आप इस पैराग्राफ पे आते हैं तो आप देखते हैं कि एन एडिशनल डायमेंशन इन द नॉर्थ ईस्ट इज द प्रेजेंस ऑफ एथनिक सब नेशनलिज्म एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन एन एग्रीवेटेड फॉर्म। ओके, तो ये रूट कॉज बता रहे हैं कि आज भी अगर हम नॉर्थ ईस्ट को देखें तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एथनिक सब नेशनलिज्म। जैसे कि अगर आप देखें मणिपुर की अगर आप बात करें तो अब मणिपुर तो हम एक स्टेट की तरह देखते हैं, पर मणिपुर में भी देयर इज एथनिक सब नेशनलिज्म। जैसे कि एक ही मणिपुर में देयर आर मैतीस नेशनलिज्म, सब नेशनलिज्म, दूसरी जगह पे देयर आर कुकी सब नेशनलिज्म। ये इस तरीके से बात कर रहे हैं कि एक ही स्टेट में यू विल फाइंड that there is subnationalism and identity politics. Fine. तो यहाँ पे जो ethnic allegiance होता है it always leads to sometimes it leads to conflict with mainstream nationalism or vice versa. Okay. Now he says that the Manipur developments imply that in much of the northeast ethnic identities still overshadow and overwhelm all other considerations. ये कहते हैं कि आज भी अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, अगर हम मणिपुर को अगर ध्यान से देखें और उसको एक्सप्लोर बाकी रीजन्स को अगर के लिए अगर हम जनरलाइज करें तो एथनिक आइडेंटिटीज जो है वो स्टिल इज अ डोमिनेंट फैक्टर, और जो बाकी सारे जो कंसिडरेशंस होते हैं वो उसको ओवरकम कर जाता है। ओके, सो नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी इट सेज द कन्फ्रंटेशन बिटवीन Meitei वर्सेस Kuki Naga ultra radicalism as evidenced in Manipur this past week needs to be viewed in the larger context of conflict between the plain Meiteis एंड द कुकी मिजो चिन जोमी नागा हिल ट्राइब्स। ठीक है, तो ये जो एथनिक सब नेशनलिज्म का जो बात कर रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि एक जगह पे मैतीस हैं जो प्लेन एरिया में डोमिनेट करते हैं,
दूसरी जगह पे कुकी, मिजो, चिनो, जोमी, नागा हिल ट्राइब्स हैं जो हिल एरिया में डोमिनेट करते हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट important point. Currently, the polarization between the majority Meitei and the other tribal communities in Manipur appears total and irreconcilable. ठीक है, ये कहते हैं कि जो आज एथनिक डिवाइड है इन दोनों ग्रुप के बीच में, यहाँ तक कि जो कुकी ट्राइब्स हैं दे आर डिमांडिंग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर एरिया। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे द डिमांड फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रेल्यूड टू द डिवीजन ऑफ द स्टेट अलोंग दिस लाइंस, मतलब एथनिक लाइंस इज करेंटली गेनिंग मोमेंटम। सो दिस स्पीक्स ऑफ द polarization between the major Meitei and other tribal communities in the Manipur. अब यहाँ पे देखिए नाउ हाउ स्टेट कम्स इनटू क्वेश्चन। कभी कभी स्टेट के रूल्स को देखिए कैसे क्वेश्चन किया जाता है। तो यहाँ पे जो एलिगेशन है हम अगर उसकी सिर्फ बात करें, द स्टेट गवर्नमेंट मोर स्पेसिफिकली द चीफ मिनिस्टर हैज कम अंडर सीवियर अटैक बाय द कुकी ट्राइबल्स फॉर द ऑनगोइंग वायलेंस। तो यहाँ पे जो कुकी ट्राइबल्स हैं नाउ दे आर ब्लेमिंग चीफ मिनिस्टर फॉर द ऑनगोइंग वायलेंस। देयर आर आल्सो एक्यूजेशंस दैट द पुलिस आर साइडिंग विद Meitei अटैकर्स। ओके, उसके बाद Meitei जो हैं दे हैव थ्रेटन टू फॉर्म अ सिविलियन डिफेंस फोर्स टू प्रोटेक्ट देयर पीपल अगेंस्ट अटैक्स बाय कुकी मिलिटेंट्स। ठीक है, अभी ट्रस्ट इशू की बात हो रही थी, आप देख सकते हो दैट ट्रस्ट इज एट नादेर। उसके बाद जितने भी ओल्ड इश्यूज हैं अब वो रीसर्फेस होना स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि बर्निंग ऑफ द हिस्टोरिक सेंटेनरी गेट इन लाइसांग विलेज बाय Meitei miscreants, then demand for the dismissal of the state government and the imposition of president's rule under Article 356 of the Constitution, then demand by tribal groups such as Kukis, Chins, Mizos, Zomis urging the center to give the region a separate administration. So these are the incidents, ठीक है ना, दिस आर द करंट अंडरपिनिंग्स विच इज कमिंग आउट ऑफ द वायलेंस। जो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से मतलब एक्विजिशंस जो है वो दोनों साइड से लग रही हैं। और यहाँ पे जो एक प्रोसेस है, पीस प्रोसेस, जो आपने फर्स्ट पेज पे पढ़ा, तो इसी ट्रस्ट को फिर से बिल्डअप करने के लिए द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज सेट अप दैट पैनल टू बिल्ड पीस इन द स्टेट। अब यहाँ पे सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो जो सॉल्यूशन होम मिनिस्ट्री की तरफ से आया है दैट इज can say the judicial probe into the ethnic violence, then there will be a 3-member committee headed by a judge to do a judicial probe. उसके बाद creation of a unified command to oversee security in the state, वहाँ पे बहुत सारे paramilitary forces भी हैं और भी forces हैं, तो एक unified command है। then announcement of a central bureau of investigation inquiry into specific incidents of violence. okay, उसके बाद एक जो फॉलोआउट जो बताया ऑथर ने दैट इज चेंजिंग द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हु बिलोंग्स टू कुकी ट्राइब ऑन ग्राउंड्स ऑफ इनइफेक्टिवनेस में ओनली सर्व टू हाइटन द गैप बिटवीन द Meiteis एंड कुकी कम्युनिटीज। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? अगर इतना प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस कहाँ से हम देख सकते हैं? तो यहाँ पे एक जो बात उन्होंने बताई है ऑथर ने, ये है कि यहाँ की we have to think out of the box for the solution. okay, it demands innovative thinking to solve this process. so यहाँ पे जो फर्स्ट थिंग वो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई भी सॉल्यूशन जो है it should be based on understanding the cultural factors in the state which is quite crucial. so they says that the Meitei versus tribal divide is both cultural and sociological phenomena. जो सॉल्यूशन जो है it should also be a combination of adjusting to realities and it should have some moral imperatives of numerous tribal communities, कि जो उनका कल्चर है उसको भी वो ध्यान में रखे। ओके, दैट इज द थिंग। देन अ सॉल्यूशन टू दिस मणिपुर इम्ब्राग्लियो इन क्विक टाइम इज इम्पॉर्टेंट। इफ अ सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन इज नॉट फाउंड अर्ली इट कुड एग्रीवेट सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज। इट सेज कि ये जो सॉल्यूशन जो भी होगा सॉल्यूशन, ठीक है, जो कल्चरल और सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स को कंबाइन करेगा, इट शुड बी क्विक, अदरवाइज जो डिवाइड है दोनों कम्युनिटी के बीच में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देन द नेक्स्ट इज दिल्ली, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू एक्नॉलेज टू इटसेल्फ दैट द सिचुएशन इन मणिपुर पोजेज अ प्रॉब्लम ऑफ नो मीन मैग्नीट्यूड, मतलब कि कोई सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन
there should be a sense of security among all the tribal groups who are living in the region. ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जब न्यू दिल्ली जो है वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को फेवर कर रहा है या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को डिसफेवर कर रहा है. इट शुड बी न्यूट्रल. द नेक्स्ट इज माइल्स टू गो. तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ इकोनॉमी. तो हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वी अनंता नागेश्वरन, so he has said that the economy is in a autopilot mode, and even if the economy remains uninterrupted, so then also the economy is going to grow at the rate of 6.5 to 7% till 2030. उसके ये जो इनका कमेंट आया है, इसके पहले एनएसओ का एक फिगर आया था जीडीपी के बारे में इंडिया के, दैट इज जीडीपी इन 2022-23, वेयर इंडिया हैज़ ग्रोन 7.2%. अब ये जो फिगर है ये प्रोविजनल फिगर है, जो फाइनल फिगर आएगा तो आवर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज सेइंग दैट द फाइनल फिगर विल बी ग्रेटर देन दिस. Okay, then next thing which he has suggested is that India now could grow for a longer period of 7 to 15 years as China did between 1979 and 2008 without running into overheating problems. ठीक है, ओवरहीटिंग प्रॉब्लम्स का मतलब कि जैसे कि प्रॉब्लम्स सप्लाई चेन बोटलनेक, सप्लाई चेन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, बोटलनेक इन्फ्लेशन हो गया, ये सब जो है ओवरहीटिंग के सिम्टम्स होते हैं. तो इससे कि विदाउट ओवरहीटिंग. ओके, अब यहाँ पे द सेकेंड थिंग इज कि इफ यू विल सी दैट यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का बहुत क्रूशियल रोल अब होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल सी दैट the private sector now should stop worrying and start investing in the economy. Okay, that is the important thing which underlies the CEA's comments. The next is जैसे देखेंगे कुछ सेक्टर्स जो हैं वो आगे बढ़ने से, लाइक सेक्टर सच एज स्टील एंड सीमेंट, दे आर सीइंग हायर कैपेसिटीज इन एक्शन. मतलब कि यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है. ओके, but sections of industry may start losing the purse strings soon, but a broad-based revival may take longer and need more actions to buttress the confidence building. तो यहाँ पे ये है कि the government should do more so that the private sector has the confidence in investment. The next is the challenge of uneven recovery. ठीक है, अनइवन रिकवरी. अब ये अनइवन रिकवरी कैसे होता है देखिए. अब जब आप लोगों ने जो लास्ट वीक जीडीपी डेटा पढ़ा था तो उसमें 3 सेक्टर के बारे में बात हुई थी. एक था आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक था आपका एग्रीकल्चर, तीसरा था आपका सर्विस. तो जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था इसका जो ग्रोथ है वो सबसे कम है. ओके, इट वाज इन द रेंज ऑफ सम 1.13% लाइक दैट. एग्रीकल्चर वॉज ग्रोइंग एट 4%. सर्विसेज में भी कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जो 7% बढ़ रहे थे, पर कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जैसे कि ट्रेड हो गया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, दे वर ग्रोइंग एट अ 14% रेट. तो ये इसको कहते हैं अनइवन रिकवरी. मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग अभी भी जो है उस इतना प्री पेंडेमिक लेवल पे रिकवर नहीं हो पाया, जबकि एग्रीकल्चर और सर्विसेज दे आर ग्रोइंग फास्टर. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज unless private investment recovers firmly and revs up job creation for millions of youth, demand growth shall not sustain enough to create the virtual cycle the government is betting on. तो यहाँ पे देखिए ये इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इन्होंने एक लाइन में तो बोल दिया. देखिए ऐसे है कि फर्स्ट द प्राइवेट सेक्टर शुड इन्वेस्ट. नाउ इफ दे इन्वेस्ट इट क्रिएट जॉब्स. अगर जॉब्स क्रिएट होता है तो लोगों के पास इनकम होता है, इनकम होता है तो लोग डिमांड करते हैं इकोनॉमी में. तो इससे क्या होता है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो इकोनॉमी में बढ़ जाता है. तो जैसे एग्रीगेट डिमांड आपका इकोनॉमी में बढ़ता है, सो व्हाट हैपेंस इज इट हैज़ अ रिपरकशंस ऑन इन्वेस्टमेंट. द मोर द डिमांड इज इन द इकोनॉमी द मोर विल बी द इन्वेस्टमेंट. ठीक है ना, उस डिमांड को पूरा करने के लिए. देन द नेक्स्ट इज मिसएडवेंचर्स जो हमको अवॉइड करना चाहिए, सच एज हाई इम्पोर्ट टैरिफ्स and complex angel tax on inbound investment apart. Okay, this has to be fixed before the economy realizes its full value. The next is amplify the subject of adolescent girl nutrition. ठीक है,
तो एडोलेसेंट गर्ल के न्यूट्रिशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। देखिए ये जो एज होता है एडोलेसेंट गर्ल का, ये किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एज होता है, ठीक है। अगर इनका न्यूट्रिशन में अगर ध्यान नहीं दिया गया इस टाइम पे व्हेन दे आर एडोलेसेंट, तो कंट्री को बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ता है। फर्स्ट थिंग इज दैट इफ आवर एडोलेसेंट गर्ल्स आर नॉट हेल्दी देन देयर पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी विल बी लैगगार्ड, ठीक है ना। तो जो उनका पार्टिसिपेशन होता है इकोनॉमी में वो कम होता है, तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो नीचे चले जाएगा। सेकेंड, these girls later on they become mothers, ठीक है। now if these girls are only suffering with some health issues, okay, or some nutrition problem, so the children born to them they will also have problem, ठीक है। तो ये साइकिल जो है वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि मदर पे फोकस करना चाहिए, मतलब एडोलेसेंट गर्ल्स पे हमें फोकस करना चाहिए, ओके। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप देखें कुछ फाइंडिंग्स, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 इट कंफर्म्स दिस कंसर्न्स, जहाँ पे देखेंगे कि दैट 59.1% ऑफ द एडोलेसेंट गर्ल्स वर फाउंड टू बी एनीमिक, मतलब एनीमिया है। अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 देखें दैट दिस नंबर्स वर 41.9% ऑफ स्कूल गोइंग गर्ल्स एज अंडर वेट, ठीक। तो ये दो फिगर्स अगर आप ध्यान में देखें तो यहाँ पे मतलब दिस शोज कि न्यूट्रिशन अंडर नरिश्ड एडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं who have very high risk of getting chronic disease and pregnancy complications later, okay, so we have to resolve this. So now how we can resolve this? So यहाँ पे if you will see there is a need to make an interventions at this stage of the life cycle, that is at the adolescent stage, which is very important to help break the intergenerational cycle of poverty. जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि अगर मदर वीक है तो चिल्ड्रन भी वीक होगा, अगर चिल्ड्रन वीक हैं तो ऑब्वियसली उनका भी जो हेल्थ आउटकम्स है, बाद में जो उनका एजुकेशन आउटकम्स होगा वो भी सफ़र करेगा, तो ऑब्वियसली उनका एम्प्लॉयमेंट लेवल जो होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा, एंड देन दैट साइकिल ऑफ विशियस पॉवर्टी गोज ऑन। So that can be broken by focusing on adolescent girls. Then well-nourished girls are more likely to have healthy babies and provide better care for their families. Thus, investing in girls' nutrition is not only the moral obligation but also an economic one, with potential returns in the form of greater and more sustainable economic growth of the nation. तो कुछ strategies जो यहाँ पे डिस्कस हुई हैं वो क्या है? तो पहला, the convergence of various government initiatives such as scheme for adolescent girls within the umbrella of Prime Minister's overarching scheme for holistic nutrition program, that is पोषण 2.0। उसके बाद द नेक्स्ट इज, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? टारगेटेड एडोलेसेंट ओरिएंटेड स्कीम सच एज राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ओके, दैट इज द सेकेंड where the focus can be given. The third is social and behavior change communication efforts around adolescent girls nutrition to generate greater demand and adoption of good practices. Then routine training of health workers for effective implementation and monitoring of various schemes for adolescent girls. Now the next is governors cannot indefinitely hold back bills, ठीक है। तो जैसा कि आपको याद होगा कि ये इशू हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, तो अब हम इस इशू को फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और रेलेवेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वो भी हमें पता चल जाएंगे एंड रेलेवेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। So if you will see the legislature of the state, okay, so the legislature of a state, it comprises of governor, legislative assembly and legislative council. तो यहाँ पे आप देखोगे, so let's start, that is the governor has little autonomy in his functioning, okay, and he acts only on the advice of his council of ministers with the chief minister as the head of the council. But if you will see whether the governor can have a discretion or not in a particular matter, so if you will see that is given under article 163(2). Fine. So यहाँ पे in the Shamsher Singh versus State of Punjab, the Supreme Court has held that a president or a governor can exercise their discretion independent of their ministers only where the constitution permits them to do so. Okay, तो अब यहाँ पे ये आर्टिकल जो है
इट सेज कि ऐसे कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे डिस्क्रिशन पे गवर्नर को एक्ट करना होता है. ओके, द नेक्स्ट इज आर्टिकल 200. ये क्या कहता है कि जब भी गवर्नर इज प्रेजेंटेड विद द बिल, तो गवर्नर के पास देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं. दैट ही कैन आइदर गिव हिज एसेंट और विदहोल्ड और रिटर्न द बिल विद सर्टन सजेशंस. ओके, so if you will see the first provisions of the article, that if the bill is presented to the governor may as soon as possible return the bill if it is not a money bill with the message to reconsider the bill as a whole. उसके बाद हाउस के पास 6 मंथ होता है टू डिसाइड वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट. बट अगर एक बार हाउस ने फिर से उस बिल को रिटर्न कर दिया टू द गवर्नर, तब गवर्नर के पास कोई चॉइस नहीं है, बट नाउ गवर्नर हैज टू गिव द एसेंट. Then the next provision is that governor in his discretion can refer a bill to the parliament अगर उनको ऐसा लगता है that the bill can take away the powers of the high court. Okay, तो ये जो पूरा प्रोसीजर है, it has been highlighted in article 201 of the constitution. But the author says कि nowhere it has been said that the discretion of the governor is also includes indefinite withholding of the assent to a bill. So the author says कि अगर ऐसा हुआ then it will be the breakdown of the constitutional machinery in the state. अब हम कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स लेते हैं इस इश्यूज को ठीक से समझने के लिए. तो पहला है पुरुषोत्तम नामबुद्री वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो while deciding whether a bill pending with the governor's assent would lapse upon the dissolution of the house, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो इट वुड नॉट. मतलब कि मान लो कि both the houses in the state they have passed the bill and is pending with the governor, but after the dissolution of the lower house the bill does not lapse. The next it says that आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 में कहीं पे भी गवर्नर के लिए टाइम लिमिट डिसाइड नहीं हुआ है. ओके, or the president to give their assent, unlike the house which has 6 months to decide recommendations of the governor or the president as the case may be. Okay, then if you will see that in Shamsher Singh, जो केस हमने पहले भी पढ़ा है, the court held that though not explicitly that it is only with respect to the second provision that the governor exercise discretion independent of the council. तो यहाँ पे डिस्क्रिशन अब देखिए कब काम में आता है, व्हेन द गवर्नर हैज टू रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन. ओके, दैट इज वन सच डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर. देन द गवर्नर सेज दैट सॉरी द सुप्रीम कोर्ट सेज कि अगर इस चीज को अगर और तरीके से अगर देखना चाह रहे हैं तो वी कैन रेफर टू द डी स्मिथ्स स्टेटमेंट ऑन रॉयल एसेंट. वो क्या है? That is refusal of the royal assent on the ground that the monarch strongly disapprove of a bill or that it was intensely controversial would nevertheless be unconstitutional. अब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है. So in the next case is Nabam Rebia and Bamang Felix versus Deputy Speaker. इन दोनों केस में अंडर आर्टिकल 200 सुप्रीम कोर्ट ने कहा that the governor exercises discretion only with regard to whether a bill has to be reserved for the consideration of president or not. ओके, सिर्फ इसी में गवर्नर का जो है वो डिस्क्रिशन जो है वो लागू होता है. Now the conclusion. So the conclusion is that the governor therefore has no discretion to indefinitely withhold the assent to a bill. That is, if a bill is presented to him, it has to be returned with recommendations or given assent as soon as possible. Now, from defense, Indian Air Force and Army carry out joint exercise in the central sector. So now let's see. The Indian Air Force, it has carried out a joint exercise with Indian Army in the central sector with deployment of multiple combat assets to check the operational readiness of two forces. So ये जो एक्सरसाइज था इसके पहले IAF ने भी एक और एक्सरसाइज किया था जहाँ पे 2 स्ट्रेटेजिक मिशंस हुए थे इंडियन ओशन रीजन में विद राफेल एंड सुखोई 30 MK1. The next is
Prime Minister inaugurates first National Training Conclave. So Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the first National Training Conclave in New Delhi to highlight the importance of capacity building, ending silos and enhancing the service delivery. Okay. So यहाँ पे it is the part of the National Program for Civil Services Capacity Building which was launched to prepare a future ready civil service with the right attitudes, skills and knowledge. Now, appointment. Kerala cadre IPS officer Nitin Agarwal is now new Border Security Force DG. That is Director General. Border Security Force, it guards the Indian border with Pakistan and Bangladesh. So, Nitin Agarwal, who is a 1989 batch IPS officer of Kerala cadre, he has been appointed as the new Director General of Border Security Force. The next is Center to complete 3D digitization of museums by year end. तो एक portal है, okay, that is called as Jatan portal. That is Jatan virtual museum builder software. तो यहाँ पे जो है वो 3D digitization होना है कुछ म्यूजियम्स के. वो कौन कौन से म्यूजियम्स हैं? That is Salar Jung Museum Hyderabad, Allahabad Museum in Prayagraj, Indian Museum Kolkata, Victoria Memorial Hall, National Museum and National Gallery of Modern Art. Okay, now let's talk about the sports. The first is Shi and Wang win women's double title in Paris. That is about French Open. So unseeded Issei So Wei of Chinese Taipei and Wang Yinyu of China, they have won the French Open women's double title. Now coming to the French Open, so Novak Djokovic won his 23rd Grand Slam by winning the French Open 2023. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वुमेन्स और टाइटल किसने जीता है सिंगल्स में, देन दैट इज ईगा स्वातिक. शी इज फ्रॉम पोलैंड. शी हैज वन द वुमेन्स सिंगल्स इन फ्रेंच ओपन 2023. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.